یہی امریکہ پچھلے 3 دن میں 15 لاکھ لوگ ایویکویٹ ہو چکے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا چکے، اور تقریباً 20,000 ایکڑ زمین پر آگ لگی ہوئی ہے امریکہ میں ابھی 2 دن سے۔ ایسی کون سی آگ ہے جو 20,000 ایکڑ زمین میں آگ لگی ہوئی ہے؟ یہ آگ لگی کیسے؟ کسی کو نہیں معلوم کہ آگ کیسے لگی۔ سب کیا کہہ رہا، آگ اس لیے لگی کہ وہاں پر تیز ہوا آئی سمندر سے، بڑی تیز ہوا، اور اس ہوا نے پیڑ پودوں کو سکھانا شروع کیا، اور اسی سے چنگاری پیدا ہوئی، ہرے پیڑ پودے جل رہے ہیں وہاں پہ۔ اور کہا گیا کہ نہیں، ایک آدمی کی سازش ہے، ایک آدمی نے آگ لگائی ہے، اس آدمی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، لیکن اس کے بعد بھی 2-3 شہروں میں اور آگ لگ گئے۔ یہ ہے اللہ۔ 20,000 ایکڑ زمین پر آگ لگی ہے، امریکہ کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ آگ کہاں کہاں لگے گی، لگ رہی ہے، کیسے لگ رہی ہے، اور اس کے جو آرمی ہیں اور اس کو وہاں کے جو فوجی اور جو ایجنسیز ہیں، ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور سب نے کہا کہ ہم اس آگ پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے ٹوٹل لوگوں کو یہ آدیش دیا جاتا ہے کہ اپنی جان خود بچائیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا استعمال کرتے ہیں، فائر بریگیڈ نہیں پہنچ پا رہی ہے جگہ تک۔ کیوں؟ 130 کلومیٹر کی رفتار سے وہاں پر ہوا چل رہی۔ ایئر کرافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو ایئر کرافٹ ہوا کی رفتار صرف نیچے نہیں ہے، بہت دور تک ہے، تقریباً 15 سے 20,000 فٹ اوپر تک ہے، تو وہاں سے پانی یا وہاں سے کوئی ایسے ہائیڈروجن پھینکنا کہ جس سے زمین تک پہنچے ممکن نہیں ہے۔ تو ان کا ہوائی جو طاقت ہے، جہازوں کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، وہ بھی ٹھپ، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں بچی ہے کہ جو اس آگ پر نینترن کر سکے۔ ان دا اینڈ، اخیر میں وہاں کے بڑے بڑے سورما، ہالی ووڈ فلم دیکھتے ہیں نا ہمارے نوجوان، سب سے زیادہ پیسے میں شاید بنائی جاتی ہے بالی ووڈ کی 100 فلمیں ایک طرف، ہالی ووڈ کی ایک فلم ایک طرف، یعنی اتنا بجٹ ہوتا ہے ان کا 1,000 کروڑ روپے کا، تب جا کر ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہے۔ تو یہ آگ اسی جگہ لگی ہے جہاں پر ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹار رہتے تھے، جن کو ہر طرح سے پروٹیکشن دیا گیا تھا، ہر طرح سے ان کی حفاظت کی جا رہی تھی کہ ان کو کوئی مچھر نہ کاٹ لے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے۔ پچھلے 3 دن سے ایسی آگ لگی ہے کہ اس کو بجھایا نہیں جا پا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تبارک و تعالی برا فیصلہ ہوتا ہے نا کسی قوم کے لیے تباہی کا، تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو وہاں ایک آدمی لکھ کر دیا، بولا مولانا ہندو کا ایک تو بہت بڑا تہوار چل رہا ہے، ہندو دھرم تو بڑا آن بان شان کے ساتھ اس کے اندر پوجا پاٹ کرتا ہے۔ اتر پردیش میں پریاگراج میں، الہ آباد میں کمبھ کا میلہ، کمبھ کا، ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی۔ ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ کمبھ کا جو اتسو ہے، میلہ ہے کمبھ کا، اس کا چرچا کہیں پر نہیں ہے، رگ وید میں نہیں ہے، سام وید میں نہیں ہے، اتھرو وید میں نہیں ہے، رامائن میں نہیں ہے، مہابھارت میں نہیں ہے، گیتا میں نہیں ہے، پران میں نہیں ہے، اپنشد میں نہیں ہے، شاستروں میں کہیں نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ رگ وید میں 8ویں منڈل میں 18ویں سوکت میں منتر نمبر 7 میں یہ کہا گیا ہے، کمبھ کا تذکرہ ہے، کمبھ کا۔
विविधः नवमिनी कुंभः, पूरा 3-4 लाइन का है। इसमें कुंभ का मतलब आता है कच्चा घड़ा। घड़ा होता है मट्टी का, तो उसको मट्टी से पहले बनाते हैं, फिर उसको आग में पकाते हैं, तो फिर पक्का बनता है। मट्टी का कोई भी सामान पहले उसको कच्चा बनाया जाता है, फिर वो बाद में उसको पकाते हैं। तो कुंभ ये कच्चे मट्टी के घड़े को कहा जाता है। और इस मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्रजीत, इंद्र किसको बोलते हैं? हिंदू धर्म में यह अकीदा है कि इंद्र उस देवता को बोला जाता है कि जो तमाम जलवायु, तमाम पानी का खुदा अगर कोई है तो वो इंद्र है। इंद्रजीत, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाही रथो दिवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। वेदों में कहा गया कि नाम अनेक है वरना जात तो एक ही। तो बैरक है, तो वहां लिखा उस मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र ने तमाम दुनिया के पानी को इकट्ठा किया और इसी इंद्र ने पर्वत पे, पहाड़ पे जाकर वहां से जल को, पानी को कच्चे घड़े से तोड़कर, पहाड़ों को कच्चे घड़े की तरह तोड़कर, यानी जैसे कच्चा घड़ा होता है उसको तोड़ना आसान होता है, वैसे इंद्रजीत पहाड़ों पे गए और पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर वहां से पानी निकाला। आपके इस सीमांचल में, हमारे जोकीहाट, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में इतना जो सैलाब आता है, पानी आता, कहां से आता है? हिमालय पर्वत से आता है ना। हिमालय पर्वत से, वहीं से पानी आता है। और कोई ना कोई भी पहाड़ हो तो उससे पानी रिसता है, पानी निकलता है। शायद उसी को इसी के अंदर कहा गया हो कि इंद्र ने, हिंदू धर्म के यहाँ अकीदे में, हालांकि हकीकत तो यह है कि दुनिया की तमाम समंदर, नदियां, पहाड़, आसमान, पेड़ पौधे, अगर कहीं से पानी निकलता है तो सिर्फ अल्लाह की जात है बस, और कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की जात। तो उनका अकीदा है कि इंद्र ने पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़ा और वहां से पानी दुनिया के अंदर बहाया, इंद्र। लेकिन एक जमाना ऐसा आया, ये कुंभ, लफ्ज कुंभ मिला, तो फिर ये भाई इतना बड़ा उत्सव कैसे मनाया जा रहा? पता कितना बड़ा? 6 साल में एक बार नंबर आता है इसका। सन 2019 में इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित किया था। गवर्नमेंट ने इसका बजट दिया था, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, वहां के सरकार। और अभी कितना पता? अभी 5,500 करोड़ रुपए कुंभ का मेले का आयोजन के लिए दिया गया। और अभी और रिपोर्ट ये आ रही है कि 7,500 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में देंगे उसकी तैयारी के लिए। उसकी तैयारी क्या है? कुंभ का मेला क्या है? ये उत्सव क्या है? कोई खास पूजा है? कोई पूजा नहीं है। सिर्फ वहां के गंगा नदी में जाकर नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। वाह भाई, ये तो फिर बहुत आसान है। किसी का मर्डर कर दो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। किसी की बेटी की इज्जत लूट लो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। बेईमानी कर लो, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर लो। और प्रयागराज के अंदर में कुंभ का मेले का आयोजन होगा, जाकर के डुबकी लगा लो। 30 दिन से 45 दिन रहता है ना, और जाकर 45 दिन वही पानी में खड़े हो जाओ। कोई भी गुनाह और पाप करके कहा जाता नहाने से आदमी का पाप, बदन, वो पाप धुल जाता है, पाक हो जाता, पवित्र हो जाता। बिल्कुल गलत और गलत और गलत है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में कुंभ का लफ्ज कुंभ मेले के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। शास्त्र में लफ्ज कुंभ में, मेले में नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में, मतलब लोगों के किस्सा कहानियों में है ये बात, किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। मैं आज पूरे 3 घंटे तक इसके ऊपर मैं ट्रेन में बैठकर रिसर्च किया।
मैंने टोटल किताबें खंगाल डाली है। बिलाखिर ये बात कही गई, ऋग्वेद के इस मंत्र के नीचे कहा गया है कि दुनिया के किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पर 5,000 5,500 करोड़ रुपए देकर गरीब और यतीम और मिस्कीन के हक में जो पैसे जाने चाहिए उनको न देकर यहाँ पर पानी में, वहां पर गंगा नदी में लाइट और तरह तरह के फजूल खर्ची करके अवाम के पैसों को बर्बाद किया जाए और उस मेले का आयोजन किया जाए, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 4 जगह पर ये कुंभ का मेले का आयोजन होता है। एक तो हरिद्वार और दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज और चौथा ये नासिक के अंदर में। ये 4 ही जगह पर होता है। 5वीं जगह पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं होता। इसके पीछे एक राज है, एक पौराणिक कथा, ये आदमियों का एक कहानी है, वरना शास्त्र में नहीं, न वेदों में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है। मैंने आज पढ़ा है, आज मुझे ये पता चला और ये तहकीक हुई कि पुराने जमाने में एक महर्षि दुर्वासा थे, उन्होंने बद्दुआ दी इंद्रजीत को, तो इंद्रजीत की ताकत कम हो गई। तो इसी इंद्रजीत देवता और दानवों की ताकत जब कम हो गई तो दैत्य और राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एक ऋषि ने, ऋषि का मतलब एक बुजुर्ग ने उनको बद्दुआ दी थी, तो उनकी ताकतें कम हो गई। बहरे कैफ जब इंद्रजीत ने कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, चलो किनके पास, विष्णु जी के पास। विष्णु जी जो परमात्मा थे सबसे बड़े, उनके पास गए और जाकर कहा कि हमें शक्ति दीजिए, हम मुकाबला करेंगे इन राक्षसों से, हमारे पास ताकत नहीं है। हमें बद्दुआ दी है ऋषि मुनि ने, हमें बद्दुआ दी है महर्षि दुर्वासा ने, इसीलिए हमें ताकत प्रदान कीजिए। उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि ऐसे ताकत नहीं मिलती, जाओ झीर सागर के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ जप तप करो, यानी कुछ इबादत करो, दुआ मांगो। तो वहां पर जब गए ये लोग, सारे देवता मिलकर के गए, तो वहां पर अमृत कुंभ पानी मिला। पानी किसमें? एक लोटे में। तो इंद्र का बेटा जैन था, वो उस लोटे को लेकर भागने लगा, आसमान में उड़ने लगा। तो पीछे पीछे कौन गया? पीछे पीछे सबसे पहले दानव और देवता गए कि नहीं भाई, ये लोटा लेकर चला जाएगा, इंद्रजीत का बेटा अकेला कब्जा कर लेगा और हम लोग ऐसे रह जाएंगे। तो गया। जब बीच में लड़ाई हुई, वहां पर चलते हुए आसमान में 12 दिन तक लड़ाई चली, तो उसके लोटे से कुछ कतरे गिरे अमृत के, तो वो कतरा पानी का गिरा इन 4 शहरों में। एक गिरा हरिद्वार में, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी गिरा प्रयागराज में, और एक कतरा पानी गिरा नासिक में, एक कतरा पानी गिरा उज्जैन में। तो इसीलिए उन जहां पर पानी का कतरा गिरा है, उन जगहों के ऊपर 6 साल में एक बार, ये भी तारीख कब आती है, अजीब है, समझ में नहीं आए। ये जब होगा, यानी इन 4 जगहों में जब होगा ये, जब सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे, तो तब जाकर इस त्योहार का और इस मेले का आयोजन होगा। किसने कहा? लोगों ने कहा। शास्त्र ने कहा? नहीं कहा। आप ईद की नमाज पढ़ते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप बकरीद की नमाज पढ़ते, आप कुर्बानी करते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप शबे बारात, आप शबे कदर मनाते हैं, शबे कदर की रात को जागते हैं, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप 30 रोजे रखते हैं, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप नमाज पढ़ते हैं, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप ज़कात देते हैं, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप हज करते हैं, किसने कहा? कुरान ने कहा। यह है इस्लाम। लोगों के कहने के ऊपर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लोगों के कहने पर ज़कात नहीं दिए जाते, लोगों के कहने पर किस्सा कहानी की वजह से 30 दिन के रोजे नहीं रखे जाते। ये इस्लाम है। यानी इस्लाम का कोई भी काम कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं होता, और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा और उनके फरमान के खिलाफ लोगों की किस्सा कहानियों की वजह से नहीं होता। अगर कोई आदमी अपने एतबार से दीन में कोई नया काम शुरू करता है, तो हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो।
تم पाप कर रहे हो, इसीलिए इस्लाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 5,500 करोड़ रुपए पानी में बहाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम को यह होश नहीं है कि सबसे ज्यादा रेप के वारदात उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा मर्डर का मामला उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा इज्तिमाई अस्मतरी यानी बलात्कार, गैंग रेप उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर किया गया। उसके पीछे पैसा नहीं खर्चा करेंगे। पिछले 9 महीने में सन 2024 के पूरे साल शुरू के 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए साइबर क्राइम फ्रॉड के जरिए से लोगों के लूटे गए। यानी कैसे होता है, आपके पास कोई फोन में ओटीपी आया, फोन कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का वो टाइम खत्म हो गया है, आप हमको जरा ओटीपी बताइए, हम अपडेट कर देते हैं। आप समझते नहीं है, फौरन ओटीपी दिया तो आपका पैसा गया। इसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर क्राइम एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा पाप है कि इसके मुजरिम को आप पकड़ नहीं सकते। क्यों? ये इंडिया से नहीं होता, बहुत दूर से बैठ के करते हैं, दूसरे मुल्क से भी करते हैं, भारत में भी होता है, इंडिया से भी होता है, लेकिन उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता। यानी 100 मामला अगर ऐसा हुआ है, 12 लाख FIR दर्ज हुए हैं। ये साइबर क्राइम यानी 11,333 करोड़ रुपए लोगों के ठगे गए। कितने? एक साल में, पिछले 9 महीने के अंदर अंदर पकड़े कितने गए? मात्र 30%, 6% लोग पकड़े गए। यानी अगर 12.5 लाख मामला सामने वजूद में आया है तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 लोग भी नहीं पकड़े गए हैं। यानी इंटेलिजेंस इतना कमजोर और 7,500 करोड़ रुपए पानी में कुंभ के मेले में बहा रहे हैं और वहां पर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। वाह भाई वाह। ये है मेरे भाइयों, हम वो मजहब से बिलोंग करते हैं, हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर होता। आज हमें उसको करने की ज़रूरत। आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, आज हमारे मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जाती है। हमारा कोई भी काम, कोई भी मसला और कोई भी मुसलमानों का फ़ैल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबला करके देख लो, मुकाबला करके देख लो। यहाँ तक कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान के अंदर अजान पड़ी जाती है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले बच्चे के कान पे अजान पड़ी जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहली आवाज कान की पहुंचनी चाहिए, यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। हर काम। अभी कहा ना हमने कि आप नहाने के लिए भी जाएं तो नहाने के आदाब बाइबल में है? नहीं है। मंत्रों में है? नहीं है। ऋग्वेद में है? नहीं है। नहाने के लिए 3 फराइज है, दुनिया में किसी भी ऑथेंटिक किताब में नहीं है, किसी धर्म के अंदर नहीं है कि नहाने का तरीका क्या है, नहाने में कितनी सुन्नत है, नहाने में कितना फर्ज है। लेकिन इस्लाम वो धर्म है जिसके अंदर नहाने तक का तरीका बताया गया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। इसीलिए यूं ही नहीं कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आप अलैहिस्सलाम के लिए संस्कृत में भी कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी मेहरथम न दुर्गादव सवा सुदान वो विश्व सम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता। संस्कृत में है, लेकिन पैगाम टोटल दुनिया के लोगों के लिए। संस्कृत योगी और मोदी का नहीं है, संस्कृत पुरानी जुबान है। जैसे अंग्रेजी जुबान अंग्रेज के अब्बा की नहीं है, अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह की है। हाँ, अंग्रेज ज्यादा उनकी मादरी जुबान है। और जैसे ही संस्कृत है, संस्कृत किसी अमित शाह का नहीं है या RSS वालों की संस्कृत जुबान नहीं है। संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज यानी सबसे प्राचीनतम पुरानी जुबान मानी जाती है संस्कृत। उनसे भी पहले और जुबानें मानी जाती है, तिब्रानी है, सुरियानी है,
وہ ساری زبانیں مانی جاتی ہے. تو یہ سنسکرت زبان کے اندر میں ایک پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ نراشن سمواجنم واجتری شیدیرم پوشنم سنمیری مہیرتم ندرگاد وسوا سدانو وشو سماترو اہنسو نشپی پرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، کسی کو اور کو نہیں کہا گیا. بائبل پڑھیے تو عیسائی کے لیے حضرت عیسیٰ، یہودیوں کی کتاب عہد قدیم پڑھیے تو یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ، یہ سب گوتم بدھ سدھارتھ کو پڑھیے تو بدھسٹوں کے لیے گوتم بدھ سدھارتھ. جینی کی کتاب مرتبان مہاویر جین کو پڑھیے تو جینی لوگوں کے لیے ان کی چرتر. سردار کے لیے، سکھوں کے لیے گرو نانک، گرو گوبند سنگھ اور ان کی تالمود آدی گرن، وہ ہے کتاب، وہ پڑھیے ان کے لیے. لیکن ہمارے نبی اور قرآن پڑھیے تو ان دا انٹائر ورلڈ، قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے. لیکن آج خود مسلمان اپنی شریعت سے دور ہے. آج خود مسلمان اپنی مذہب اسلام کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں آ رہی. اگر آپ آج بھی مسلمان کو اپنی شریعت سے محبت ہو جائے، نماز پابندی سے پڑھنے لگے، سود جیسی گندی چیز سے اپنے آپ کو بچائے، بے ایمانی سے، چغل خوری سے، غیبت سے، بے پردگی سے اور جہیز جیسے ملعون چیز سے اگر مسلمان اپنے آپ کو پاک کر لے، انشاءاللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کا انتظار کر رہی. مدد ایسے تھوڑی آتی. صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم لوگ بڑے ہو کرتے ارے یار وہ تو صحابہ ہیں، یعنی وہ گناہ بعد میں کرتے ہیں اور ان کی معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تو صحابہ ہیں، دیکھو جنت کی بشارت مل گئی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو پاک اور پوتر جماعت تھی. ایسے نہیں ملی ہے میرے دوستو. بڑی قربانیاں پیش کی انہوں نے، بہت قربانی پیش کی، بہت خون بہائے گئے، مارا پیٹا گیا، جسم میں سوراخ کیا گیا اور ان کی آنکھیں نکالی گئی، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، ان کے اوپر پتھریں برسائے گئے. ان تمام پریشانیوں کے بعد تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے. کیا اگر مسلمان آج قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ ضرور مدد آئے گی. مدد آئی ہے غزہ پٹی کی دھرتی پر، اور بنا عمل اور بنا تبدیلی لائے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ بدر میں میدان میں ہیں، ایک طرف 1000 کفار ہے، ابو جہل ہے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے، اور ایک طرف 300 صحابہ کرام جن کے پاس گھوڑے نہیں، جن کے پاس تلوار نہیں، جن کے پاس کوئی مضبوط ہتھیار نہیں، 1000 لوگوں سے لڑنے کے لیے. مسلمانوں پھر پتا کیا ہوتا؟ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے. میدان بدر میں پہنچتے، صحابہ کرام موجود ہیں 300 کی تعداد میں وہاں پر، اور ادھر کفار ابو جہل اپنی پوری طاقت کے ساتھ 1000 بلکہ 1300 لشکر لے کر آیا تھا، 1300 لوگوں کو لے کر آیا تھا. 600 تو صرف گھوڑے تھے اس کے پاس، اونٹوں کی تعداد ان گنت، اور تیر تلوار تفنگ زرہ نیزہ سب تھا. اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں. کسی کے پاس ڈنڈا ہے تو گھوڑا نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس کوئی لکڑی ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ کی ذات پر مدد کر، ایمان رکھو، عقیدہ رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے صف بناتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر. آج مسلمانوں کا یقین اللہ پر نہیں ہے، آج مسلمانوں کا عمل کھوکھلا ہے. شراب پینے میں آگے مسلمان، بے ایمانی کرنے میں آگے مسلمان. سب سے زیادہ داماد اور بیٹیوں کا سودا کرنے والے یعنی جہیز مانگ کر شادی کرنے والا مسلمان قوم آگے، اور سب سے زیادہ جوا کے اندر ہمارے نوجوان برباد. فلموں کے پیچھے چکر لگانے، گانا سننے کے لیے ہمارے نوجوان آگے.
जुमे का दिन गुजरा है, जुमे की नमाज पढ़कर मैं फौरन निकला। मैंने ट्रेन के अंदर बैठकर सूरह कहफ को पढ़ा। कितने नौजवान थे ऐसे जो जुमे की नमाज जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते। कितनी बड़ी फजीलत है। 15 पारे के अंदर सूरह कहफ है। अगर कोई आदमी जुमे के दिन जुमे की सुबह से लेकर असर के वक्त तक अगर सूरह कहफ पढ़ता तो आने वाले अगले हफ्ते तक उसकी हर परेशानी से, उसके हर शर से, उसके हर आफात बलियात से अल्लाह उसको हिफाजत करता, उसकी हिफाजत करता। कोई नहीं पढ़ता। जुमे के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए उस नबी के लिए जिन्होंने कल तक खड़े होकर पांव में वरम लाकर आपकी मगफिरत की दुआ की, और कल कयामत में सबका बेड़ा पार होगा तो यही नबी दुआ करके आपको जन्नत में दाखिला दिलाएगा। पुष्पा 2 का हीरो नहीं दिलाएगा, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं आएगा। वो तो खुद बंदर बने होंगे, उनको तो खुद अपनी पड़ी होगी। आपको अगर कोई जात बता सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बचा सकती। सहाबाए कराम मैदान बद्र में है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, यकीन है, क्योंकि जानते थे वो हक पर है, ईमान मजबूत है। फजर की नमाज पढ़कर सहाबा को अल्लाह के नबी ने सफ में बांध दिया। छोटे छोटे बच्चे 13 और 14 साल की उम्र, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की 14 साल की उम्र। आज 14 साल का बच्चा तो पबजी गेम खेलता है। 14 साल का बच्चा जाता है बंगाल और वहां से जाकर शराब की थैलियां लेकर आता है। 14 साल का बच्चा आज गाना सुनने में आगे, 14 साल का बच्चा आज फिल्म देखने में आगे, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता। यहां 14 साल का बच्चा मुआज़ बिन मुअव्विज़ बिन अफरा, ये दोनों जवान हैं हाथ में तलवार लेकर। इस उम्मत का सबसे ज्यादा नापाक आदमी कौन? अबू जहल था। सबसे ज्यादा नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला अगर कोई था तो अबू जहल था, और अबू जहल का खात्मा करने वाला अगर कोई हस्ती, कोई बहादुर था तो ये 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अबू जहल का खात्मा किया। सबक लेने की जरूरत है। सहाबाए किराम मैदान में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़े बांध कर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ज़िरा पहने हुए हैं, फौजी सूट पहने हुए, फौरन निकल जाते हैं अपने हुजरे में और वहां पर जाकर सजदा करते हैं और वहां पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर दे। ए अल्लाह, ये मादूद चंद 300 सहाबा हैं, अगर ये बाकी नहीं रहे, ख़त्म हो गए तो ये अल्लाह क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इसकी मदद, इनकी मदद फरमा दे। यानी यहाँ पर 2 पैगाम मिलता है। क्या? परेशानी के वक्त में डटकर ज़मीन पर उतर कर खड़ा होना। मिस्टर योगी और मोदी कोई कानून बनाता है देश के संविधान के खिलाफ तो जमीन पर उतरकर सीना तान कर खड़ा होकर उसका मुकाबला करना, और दूसरे नंबर पर अल्लाह से मदद मांगना, दुआ मांगना। ये दोनों चीजें इससे हमें मिलती है। इससे हमें सबक मिलता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में गए, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इनकी मदद फरमा। अगर ये 313 नहीं रहे, खत्म हो गए, तो तेरा नाम कयामत की सुबह तक ये 30 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन 1000 फरिश्ते लेकर हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ मदद करो मेरे महबूब की। तो मदद हुई कि नहीं हुई? वैसा ईमान चाहिए, वैसा यकीन चाहिए, और ऐसी मदद हुई, ऐसी मदद हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन से मट्टी उठाया अपने एक मुट्ठी में और शाहतिल वजू पढ़कर ऐसे छिड़क दिया, फेंक दिया। वो धूल हर किसी काफिर के आंखों तक पहुंचता है, और उधर जिब्राइल अमीन 1000 फरिश्ते लेकर मैदान कारजार में मुकाबला कर रहे हैं। ईमान मजबूत हो, अल्लाह की जात पर यकीन मजबूत हो, तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला मदद भेज सकता है, जैसा कि गजा पट्टी के 5000 नौजवानों के लिए अल्लाह ने मदद भेजी। लेकिन आज वैसा ईमान है हमारा? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ईमान तो दूर की बात है जनाब, नमाज हम ही नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना फर्ज है मुसलमानों, माओ बहनों सब पर नमाज फर्ज है। अरकान इस्लाम 4 है, 5 है,
ان میں سے دوسری چیز سب سے بڑی چیز پہلے نمبر پر سب سے پہلے یعنی جو اسلام ہے وہ 5 رکن ہیں اس کے. جیسے آپ نے پنڈال کھڑا کیا تو اس کے پلر پر کھڑا کیا، آپ نے کھمبوں پر کھڑا کیا، یہ بانس کے، اگر ان میں سے ایک لائن کے کھمبے آپ توڑ کر ہٹا دیجئے تو یہ گر جائے گا. تو ایسے اسلام ہے، اسلام کے ارکان 5 ہے، ان میں سے کسی ایک پر اگر کمی کوتاہی کریں گے تو پھر وہ اسلام کی جو چھت ہے، عمارت ہے، وہ گر جائے گی. پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے. ایمان تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن روزہ، حج، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے پروسیس ہے. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے سب پر فرض ہے، سب پر، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب پر نماز فرض ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑو گے تو کفر کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں نماز سے آباد نہیں ہوتی؟ ہر ایک مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے. اگر پوری بستی کے اندر میں 100 آدمی ہے تو 100 کے 100 کو نماز پڑھنا چاہیے. ایک کو کوئی مجبوری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز پڑھیے آپ. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اندر سے آپ مضبوط ہوں گے، روحانی طاقت آپ کی بڑھے گی. نماز پڑھنے سے قربت بڑھتی ہے. ہمارا کوئی بھی کام شریعت کے فرمان، نبی کی بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں ہوتا.